Hello students. Alright, so in the previous video we had done कि जिमी जो है ही like when he meets Annabelle Adams उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है where he wants to be like he wants to be an honest person, एक आम सी ज़िंदगी, एक सिंपल सी ज़िंदगी जीना चाहता है, एक ऑनेस्ट लिविंग रखना चाहता है वो, ठीक है। वो अपने एक फ्रेंड से मिलना चाहता है, पुराने फ्रेंड से जिसका नाम बिली रहता है। उसको अपनी पुरानी जो सूटकेस रहती है जिसमें टूल्स रहते हैं उसको देना चाहता है वो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि उस वक्त बेन प्राइस की एंट्री होती है एंड बेन प्राइस फाइनली सीज रैल्फ डी स्पेंसर, जो एक्चुअली में रियलिटी में जो जिमी वैलेंटाइन रहता है। और जब बेन प्राइस जो है जिमी वैलेंटाइन को देखता है तो ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट लाइक ही वॉन्ट्स टू रिवील हिज आइडेंटिटी सबके सामने, ये चीज़ चाहता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। The next morning, Jimmy took breakfast at the Adamses. He was going to Little Rock that date to order his wedding suit and buy something nice for Annabelle. That would be the first time he had left town since he came to Elmore. It had been more than a year now since those last professional jobs, and he thought he could safely venture out. So, Jimmy का पूरा 1 साल हो चुका होता है जब उसने अपनी पुराना जो काम है वो छोड़ दिया होता है, लाइक जो बगलरी का। और एल्मोर से अब वो फाइनली बाहर निकलना चाहता है, एनाबेल के लिए भी कुछ लाना चाहता है गिफ्ट, और अपना सूट भी ऑर्डर करना चाहता है शादी के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्वाइट अ फैमिली पार्टी वेंट डाउनटाउन टुगेदर। मिस्टर एडम्स, Annabelle, Jimmy and Annabelle's married sister with the 2 little girls aged 5 and 9, they came by the hotel where Jimmy still boarded, and he ran up to his room and brought along his suitcase. Then they went on the bank. There stood Jimmy's horse and buggy and Dolph Gibson, who was going to drive him over to the railroad station. Dolph Gibson जो था, he was supposed to drive him to the railroad station जहाँ पे वो जाने वाला था जिमी, ठीक है। सब लोग आए हुए रहते हैं, एनाबेल रहती है वहाँ पे, मिस्टर एडम्स रहते हैं, एनाबेल की बहन रहती है, उसकी बहन की दोनों बेटियाँ रहती है, छोटी छोटी बेटी रहती है, वन इज़ 5 years और दूसरी रहती है जो 9 years की रहती है, ठीक है। सब आए हुए रहते हैं एक साथ। All went inside the high-carved oak railings into the banking room. Jimmy, included for Mr. Adams' future son-in-law, was welcome anywhere. और जिमी को तो सब पहचान चुका था कि वो फ्यूचर सन-इन-लॉ बनने वाला है मिस्टर एडम्स का, तो उसको कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, सब लोग जानते थे उसको। The clerks were pleased to be greeted by the good-looking, agreeable young man who was going to marry Miss Annabelle. Jimmy set his suitcase down. Annabelle, whose heart was bubbling with happiness and lively youth, put on Jimmy's hat and picked up the suitcase. "Wouldn't I make a nice drummer?" said Annabelle. "My Ralph, how heavy it is. Feels like it was full of gold bricks." तो एनाबेल हंसते हुए जब उसे मिलती है तो उसका हैट पहनकर वो सूटकेस उठाती है और बोलती है कि क्या मैं एक नाइस ड्रमर नहीं बन सकती हूँ, एक अच्छी ड्रमर नहीं बन सकती हूँ। उसके बाद सूटकेस उठाने के बाद बोलती है, अरे ये तो बहुत भारी है राल्फ, क्या इसमें गोल्ड ब्रिक्स है? "A lot of nickel-plated shoehorns in there," said Jimmy coolly. "Then I'm going to return. Thought I'd save express charges by taking them up. I'm getting awfully economical." So he says कि इसमें nickel-plated plated shoehorns है जिसको मैं हटा देना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। he coolly says that, बहुत casually बोलता है, ऐसा बोलता है कि ताकि शक ना हो किसी को, डाउट ना हो उसके ऊपर। The Elmore Bank had just put in a new safe and vault. Mr. Adams was very proud of it and insisted on an inspection by everyone. Elmore Bank में एक नया सेफ बना था, ठीक है, नया सेफ बना था, और मिस्टर एडम्स जो थे ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, और सबको दिखाना चाहते थे वो, देखो नया सेफ बना है ये वाला। The vault was a small one, but it had now a patented door. It fastened with 3 solid steel bolts thrown simultaneously with a single handle and a time lock. Mr. Adams beamingly explained its workings to Mr. Spencer, who showed a courteous but not too intelligent interest. The 2 children, May and Agatha, ठीक है, ये दोनों बेटियों का नाम रहता है, वो जो एनाबेल की जो बहन रहती है उसकी दोनों बेटियों का नाम है मे एंड अगाथा, ठीक है। वो डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स। तो जब वो दिखाई रहे होते हैं मिस्टर एडम्स, तो ये दोनों जो बच्चियाँ रहती हैं, दे आर फैसिनेटेड बाय द न्यू निकल नॉब्स जो रहते हैं, जो खोलने वोलने का जो सेफ का जो रहता है हैंडल, ये सब देखकर बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं।
While they were thus engaged, Ben Price sauntered in and leaned on his elbow, looking casually inside between the railings. He told the teller that he didn't want anything. He was just waiting for a man he knew. So वहाँ पे just ये सब दिखाई रहे होते हैं मिस्टर एडम्स सबको, लाइक जिमी भी उनके अब फैमिली मेम्बर की तरह था, तो उसको भी दिखा रहे होते हैं. जिमी हालांकि बहुत कैजुअली सा देखता है, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड. उसको सब कुछ पता होता है ऑलरेडी कि क्या चीज़ लॉक क्या है, नॉब क्या है, सारी चीज़ें उसको मालूम रहती हैं. बट फिर भी क्योंकि वो रिस्पेक्ट दिखाना चाहता है मिस्टर एडम्स को, तो ही वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर रिस्पेक्टफुली. ठीक है. उसी दौरान बेन प्राइस जो है वो बाहर से रेलिंग से झांक रहा होता है बैंक के अंदर, और क्लर्क को बोलता है कि मैं बस एक ऐसे इंसान को देखना चाहता हूँ जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ. ठीक है. Suddenly there was a scream or two from the women and a commotion, unperceived by the elders. May, the 9-year-old girl, in a spirit of play, had shut Agatha in the vault. She had then shot the bolts and turned the knob of the combination as she had seen Mr. Adams do. So, May ने क्या किया था? May was a 9-year-old girl. May जो थी वो बड़ी थी और अगाथा जो छोटी थी, 5 years की थी अगाथा. May ने खेलने में क्या किया था? उस वॉल्ट के अंदर अगाथा को बंद कर दिया था. नॉब और जो हुक होता है उसको लगा कर, ठीक है, बंद कर दिया था अगाथा को उसमें. और इसके बाद बहुत मुश्किल हो रहा था निकालना. मिस्टर एडम्स को देखा था उसने इसी तरीके से वॉल्ट को बंद करते हुए उसी को बंद कर दिया था. अब बहुत चिल्ला मिल्ली होने लगी, कमोशन हो गया एक बिल्कुल. जो वो लोग भी जो थी एनाबेल एडम्स और उसकी बहन, वो लोग चिल्लाने लगी घबरा कर. The old banker sprang to the handle and tugged at it for a moment. The door can't be opened, he groaned. The clock hasn't been wound nor the combination set. So क्या बोला इसके बाद मिस्टर एडम्स ने? ये तो खुल ही नहीं सकता है बिकॉज इसका टाइम ठीक से ना ही सेट हुआ है और ना ही कॉम्बिनेशन ठीक लगा है. अगाथा's mother screamed again hysterically. और अगाथा की मदर को हिस्टेरिक्स होने लगे, लाइक वो गश आ कर गिर रही थी, बेहोश हो जा रही थी बिल्कुल. Hush, said Mr. Adams, raising his trembling hand. All be quiet for a moment, Agatha, he called as loudly as he could. Listen to me. During the following silence, he could just hear the faint sound of the child wildly shrieking in the dark vault in a panic of terror. और इसमें एक छोटी सी बच्ची वॉल्ट में बंद है, उसको मिस्टर एडम्स बार बार बताने, तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज़ खामोश रहो, निकल जाओगी तुम, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन वो छोटी सी बच्ची थी तो वो चिल्ला रही थी डर कर. अंधेरा था बिल्कुल वॉल्ट के अंदर. My precious darling, wailed the mother. She will die of fright. Open the door or break it open. Can't you men do something? जो एनाबेल की जो बहन रहती है वो भी बोलती है कि यू मैन स्टैंडिंग है, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते क्या? प्लीज़ मेरी बच्ची को निकालो, वो मर जाएगी डर से. There isn't a man nearer than little Rock who can open that door, said Mr. Adams in a shaky voice. My God, Spencer, what shall we do? That child, she can't stand it long in there. There isn't enough air, and besides she'll go into convulsions from fright. तो मिस्टर एडम्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं. वो राल्फ को बोलते हैं इसके बाद कि अब क्या करें हम लोग, बताओ राल्फ कैसे इस चीज़ को खोलते हैं. वो बच्ची जो है वो तो डर कर कन्वर्जल्स आने लगेंगे, लाइक वो बेहोश होने लगेगी. ठीक है, सांस नहीं ले पाएगी, हवा नहीं है उसके अंदर. Agatha's mother, frantic now, beat the door of the vault with her hands. Somebody wildly suggested dynamite. Annabel turned to Jimmy, her large eyes full of anguish, but not yet despairing. To a woman, nothing seems quite impossible to the powers of the man she worships. Can't you do something, Ralph? Try, won't you? So Annabel अब टर्न करती है राल्फ के टूवर्ड्स, ऑब्वियसली जिमी वैलेंटाइन के टूवर्ड्स, और टर्न करके बोलती है, राल्फ क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, क्या होगा? लाइक ऐसे सिचुएशन में कोई भी वुमेन जो वर्शिप करती है एक मैन को, जिस मैन को वर्शिप करती है, सारी उम्मीदें उसी से लगाती है. और यहाँ पे एनाबेल जो है, शी लव्स राल्फ टू द कोर, लाइक जिमी को बहुत प्यार करती है वो, तो वो सारी उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशंस उसी से रखती है और उसके टूवर्ड्स टर्न करके बोलती है, राल्फ क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? कोशिश कर सकते हो ना. He looked at her with a queer soft smile on his lips and his keen eyes. Annabel, he said, give me that rose you're wearing, will you? So इसके बाद अब राल्फ ऑब्वियसली ही वॉज अ स्किलफुल, एक स्किल्ड, एक मास्टर था वो ऑब्वियसली सेफ क्रैक करने में. उसको कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता था. सो वो जानता तो था उस चीज़ को खोलना कि क्या करना है. ही गिव्स अ स्माइल, लाइक ना चाहते हुए भी वो ये काम
करने शुरू करता है, करने लगता है वो, ठीक है। इसके बाद वो एनाबेल को बोलता है कि तुमने जो रोज़ पहना हुआ है, जो उसका जो पिन रहता है, वो मांगता है कि क्या तुम दोगी मुझे वो। हार्डली बिलीविंग दैट शी हैड heard him all right, she unpinned the bud from the bosom of a dress and placed it in his hand. Jimmy stuffed it into his vest pocket, threw off his coat and pulled up his shirt sleeves. With that act, Ralph D. Spencer passed away and Jimmy Valentine took his place. इसके बाद जैसे ही उसको वो पिन मिला, इसके बाद राल्फ डी स्पेंसर का जो उसने एक डिस्गाइज बोल सकते हो, जो डाला हुआ था उसने, वो हट गया और फाइनली फिर से हम लोग जिमी वैलेंटाइन को देखते हैं कि वो अपने काम में लग गया है, फिर से वो सेफ को क्रैक करने लगा, ठीक है। लेकिन इस बार दिस वॉज फॉर अ गुड कॉज, ओके। गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली। दरवाजे के पास से हट जाओ सब लोग, सबको बोलता है वो, सबसे ये बात बोलता है। He set a suitcase on the table and opened it out flat. From that time on, he seemed to be unconscious of the presence of anyone else. He laid out the shining queer implements swiftly and orderly, whistling softly to himself as he always did when at work. In a deep silence and immovable, the others watched him as if under a spell. जब वो काम करने लगा अपने टूल किट को लेकर, जो सूटकेस उसके पास, उसमें टूल्स थे, उसके औजार थे, तो जब वो काम करने लगा ये वाला, तो लोग उसको ऐसे देख रहे थे, सब लोग जो वहाँ पे खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ जादू सा छा गया है बिल्कुल। सिर्फ जिमी काम कर रहा है और बाकी सब लोग स्टिल रुक गए हैं बिल्कुल। In a minute, Jimmy's pet drill was biting smoothly into the steel door. In 10 minutes, breaking his own burglarious record, he threw back the bolts and opened the door. बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट लगा उसको, एंड उसने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इससे जल्दी शायद ही उसने कोई सेफ को क्रैक किया था आज तक। सो उसने अपना भी सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो वॉल्ट जो था फाइनली खोल देता है वो। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बट सेफ वॉज गैदर्ड इनटू हर मदर्स आर्म्स। अगाथा तो ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो गई थी और शी हैड ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, ऐसा लग रहा था उसमें जान ही नहीं बची, लेकिन जैसे निकलती है अपनी माँ की गोद में आकर गले लग जाती है, माँ की गोद में आ जाती है वो। Jimmy Valentine put on his coat and walked outside the railings towards the front door. As he went, he thought he heard a faraway voice that he once knew call Ralph, but he never hesitated. So Jimmy Valentine, अब उसको पता लग गया था, उसको ऐसा लगने लगा था अब तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो वो फ्रंट डोर से जाने लगता है। उसी वक्त उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है, राल्फ बुला रहा है, और उसको जानी पहचानी सी आवाज़ लगती है ये। At the door, a big man stood somewhat in his way. और डोर पे ही, दरवाजे पर ही, सामने के दरवाजे पर जहाँ से वो जा रहा था जिमी, वहाँ पर उसको एक बिग मैन, दिस इज़ बेन प्राइस, ओके, बेन प्राइस दिखता है उसको। हेलो बेन, सेड जिमी, स्टिल विद अ स्ट्रेंज स्माइल। सो ही ग्रीट्स हिम, उसको बोलता है हेलो बेन। Got around at last, have you? Well, let's go. I don't know that it makes much difference now. So जिमी से जब मुलाकात होती है जिमी की बेन प्राइस से, तो उसको बोलता है कि वेल फाइनली इट्स यू, तो हमारी मुलाकात हो गई एट लास्ट, चलो जहाँ पर लेकर जाना है, अब मेरे लिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी चीज़ होना है हो जाए मुझे। एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रादर स्ट्रेंजली। इसके बाद अब बेन प्राइस बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है, ठीक है। Guess you're mistaken, Mr. Spencer, he said. Ben Price, on the other hand, he doesn't reveal his true identity, ठीक है। वो उसको क्या बोलता है, वो उसको बोलता है कि शायद आपसे कुछ गलती हुई है मिस्टर स्पेंसर। Don't believe I recognize you. Your buggy is waiting for you, ain't it? तो क्या बोलता है वो उसको कि मिस्टर स्पेंसर, लगता है कुछ गलती हुई है आपसे, मैं आपको पहचाना नहीं, मुझे लगता है कि शायद आपकी बगी जो है वो वेट कर रही है बाहर, एंट इट। एंड बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट। और इसके बाद बेन प्राइस जो है वो वहाँ से घूमकर स्ट्रीट की तरफ निकल जाता है, चला जाता है, ठीक है। ही डजंट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी बिकॉज बेन प्राइस ऑल्सो वॉज नॉट अ बैड पर्सन। उसको ये लगा इस टाइम पर, जैसे ओ हेनरी जैसी स्टोरीज़ लिखा करते थे, ठीक है। उन्होंने जैसे लास्ट लीव भी लिखा था, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त सा ट्विस्ट दिया था लास्ट में, एंडिंग में, क्लाइमैक्स जो होता था
वैसे यहाँ पे भी है, जहाँ पे बेन प्राइस उसको पकड़ने के लिए ही आता है जिमी वैलेंटाइन को, लेकिन जब उसमें देखता है कि इस चीज़ की तब्दीली है, इतनी हद की तब्दीली है उसके अंदर कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है, तो बेन प्राइस उसके बाद इंटरफियर नहीं करना चाहता है, ठीक है। वो ये चाहता है कि उसको इस चीज़ का मौका दे और सुधरने में उसका साथ दे, ठीक है। ऑलराइट, class 11, so we have completed this chapter. If you find any word that is difficult for you to understand, please find out its meaning from the dictionary. और अगर कोई भी पोर्शन ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, तो feel free to ask in the comment section of this video. Please go through the explanation once again. एक बार स्टोरी जो है फिर से खुद पढ़ लो. I'll be giving the question and answers to you, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर का. I'll be posting the images in Wasm. उसको अपनी कॉपी में लिख लेना एंड रीड कर लेना उसको अच्छे से, ताकि समझ में आए और बाकी आंसर्स कैसे फॉर्म करना है. That's it. Thank you.